I will first do a quick recap with you guys. Just try to refresh your memories. And let's get started. Okay. So what can you see this question on your screen? GDP. GDP. Perfect. It is the overall production because GDP is basically the gross domestic product, and it is the gross production of the entire economy presented in one set of data. So it both in terms of volume and price. So this thing is basically GDP. Perfect. So I'll move on to the second question. Can you try? I'll just erase this. Try answer. Data tells about the overall production. This is GDP. yeah, this one. Which is the sector which has maximum weight. Nifty. Any guesses? We haven't discussed this really exclusively. Financial services. That's absolutely right. And did you read about it, or how did you come to know about this? I think today it was there in the paper that I think most of the banking sectors, their share prices have gone up. Yeah. So absolutely right, Nihali. Today, what happened, if you guys saw the markets, today Bank Nifty is up by 1,000 points. I'll tell you what this means, but Bank Nifty is up by 1,000 points and Nifty is approximately up by 1%. Bank Nifty was up by 2%. And because of this Bank Nifty, it is the maximum weightage in Nifty, all the financial services. So it had a directly impact on Nifty as well. So do you guys remember what Nifty is? Does everyone remember what Nifty is? The National Stock Exchange. Nifty is the index of the National Stock Exchange. Okay. So it's basically the representative of the NSE NSE exchange, and Bank Nifty is like a subsectoral index which tracks the banking sector. Okay, so if this is a very, people use this very interchangeably fluently. Nifty, Bank Nifty kaise tha, Nifty kaise tha. This is something which is really used on a daily basis. Nifty and Bank Nifty are like the favorite indices of traders. So right now we'll just concentrate on Nifty. So Nifty was explain Bank Nifty again, please. Sure. So this is not very important, but Bank Nifty, as the name suggests, is basically like a sectoral index of Nifty. So there could be an FMCG Nifty, Nifty IT, Nifty manufacturing. Where say there's something called Bank Nifty, which is only the banking sectors of the Nifty, the powerful banking stocks. Out of the many sectoral indices present, Bank Nifty is one of the most important sectoral indices. The reason is banks have a very good weightage in Nifty. And banks really shape up how movement in banking stocks really can shape up how the Nifty will move. That's why Bank Nifty is really given importance if one is analyzing Nifty. Nihali, is it clear somewhat? Yeah. Thanks. Yeah. Okay, perfect. So it's actually the financial services. If I'm not wrong, it has a weightage of about 37% to 44%. It keeps fluctuating, like, the indices, but this is the weightage. And
in financial services, one of the most important is HDFC Bank. This has a very big weightage in Bank Nifty and in Nifty in terms of financial services. HDFC Bank has the highest weightage. So the market, so the move, yeah, please. हाँ बोलिए, आप बोलिए पूर्वी. After that I'll ask. So a movement in HDFC Bank can indicate a movement in Bank Nifty and Nifty as well. I'll tell you the importance of knowing these weightages, क्या काम आती है बाद में, पर अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि having a idea of the weightage in an index helps you gauge the movement of that particular index without actually checking each and every company. You can just check which sector is driving the market. Yes. आप कुछ पूछ रहे थे लावण्य जी? Yeah, it was again regarding when we talk of Bank Nifty and Nifty, Nifty, I means what I understand is like 50 top companies on the NSE. So when we talk of Bank Nifty, so are there different sectors? I mean, for 50 top financial services is what we are talking of, or how I would want a clarity on that. Right. So Nifty is very big. It has lots of companies. Nifty में बस 50 companies नहीं है. Nifty में approximately 500-600 companies है. हम लोग Nifty के top 50s को track करते हैं, इसलिए बोलते हैं Nifty 50. Bank Nifty tracks the top ये 600 कंपनी से सबसे ऊपर के फाइनेंशियल कंपनीज को बैंक निफ्टी ट्रैक करता है. Okay. Yeah. So Nifty tracks the top 50, Bank Nifty tracks the top companies in the financial sector. That means only the banks only, or the other financial companies also? No, only so all NBFC banks, all of this which are related to finance. It does not Who is providing necessarily the finance? financial. Who is providing the finance? Exactly. Okay. Exactly. Yeah. One more question. So Yes. this Bank Nifty or FMCG Nifty, their Sensexes will proportionately affect the Sensex of Nifty, or it's not the same? I come again. I do not really understand. If Bank Nifty, the index of Bank Nifty, if that goes up, Nifty, the Sensex, I mean, Yeah. Sensex Okay. will also go proportionately. No, not necessarily. Reason being that Sensex also has something called Sensex Bank. There is a sectoral, जैसे निफ्टी का एक sectoral breakdown है, वैसे सेंसेक्स का भी है. But निफ्टी movement in Nifty has definitely an impact in Sensex, but not proportional for sure. ऐसा नहीं कि अगर निफ्टी में 2 और 3% है तो सेंसेक्स के बैंक्स वाले में भी 2 और 3% होगा. Not necessary at all, because सेंसेक्स में अलग तरह के स्टॉक्स कंप्राइज होते हैं और निफ्टी में अलग तरह के जो मतलब इट्स नॉट ऑन अ वेरी चॉइस्ड बेसिस. देयर इज नो डिमार्केशन कि कौन किस में जाएगा, बट everything what's there in Nifty need not necessarily be in Sensex. That's why this proportional movement is not possible. Did I answer your question? Was it Nihali? Yeah. Okay. Yeah. Perfect. So I'll move ahead. Okay, guys, I'll just इसका क्या आंसर है? Is understanding financials of internal factor or external? Internal factor. Internal Yes. factor. Internal. Why is it internal?
because the financial reports and balance, I mean, all the financial documents of the country are, company are the internal documents of the country, unaffected by the external external. factors for sure, completely. So basically internal factors वो होते हैं जो आपके हाथ में हो, आपके कंट्रोल में हो. Those are internal factors. Now, for example, if the profit of the company is declining, एक्सटर्नल भी रीजंस हो सकते हैं, बट शायद अगर बहुत ज्यादा डिक्लाइन है, कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ है. सो इट्स एन इंटरनल इश्यू ऑफ द कंपनी. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज इंटरनल फैक्टर्स. ओके, perfect. So financials, and this is what, wait one second. Just one, I guess is the last one. इसका आप लोग गेस कर सकते हो. दिस वाज एन इंडस्ट्रियल KPI, if you remember, top down approach, which we discussed last time. उसमें से टॉप में इकोनॉमी आता है, फिर इंडस्ट्री आता है. उस इंडस्ट्री में से KPIs डिस्कस किए थे हम लोग ने ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज. मैंने बैंकिंग का नहीं डिस्कस किया, पर आप लोग ने अभी इतने न्यूज वगैरह पढ़ रहे हो, तो आप लोग गेस कर सकते हो क्या हो सकता है इन सब में से. Monthly active users? Yeah, I was also just about to say that monthly active user. Okay, so it is not monthly active users. It is Non-performing assets. Non-performing. exactly. That is the loss to the banks, right? Yes, that Payal is absolutely right. It's non-performing assets. Non-performing assets are those loans which not repay to the bank, and they become like a bad debt. So those are called NPAs. It's a very important KPI for banks. कि भाई इस बैंक का NPA बहुत हाई है, तो फिर बैंक का लिक्विडेशन या फिर अपने डिपॉजिटर्स को पैसे देने में भी इश्यू आ सकती है, क्योंकि लोन्स के इतने बैड डेट्स है इस कंपनी के पास. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट KPI ऑफ द बैंकिंग सेक्टर. मंथली एक्टिव यूजर्स इज फॉर जो एप्स होते हैं ना, एप्स जो बिल्ड करते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि एक मंथ में मेरा अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सा भी ऐप ले लीजिए, जो आप नेटफ्लिक्स ले लो ऐप. नेटफ्लिक्स में माय मंथली एक्टिव यूजर्स इज 1 crore, पर अगले महीने माय मंथली एक्टिव यूजर्स आर ओनली 1000 पीपल. सो मतलब कितना ड्रॉप आया, पीपल नॉट यूजिंग इट एज मच एज दे यूज लास्ट मंथ. सो ये ऐप बेस्ड कंपनीज में बहुत इंपॉर्टेंट KPI. एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज फॉर एन ई कॉमर्स. एक कार्ट का वैल्यू कितना है? Okay. Website traffic is for any SEO stuff for any company, to be honest. वेबसाइट ट्रैफिक एक इम्पोर्टेंट KPI कि मेरे वेबसाइट में कितना ट्रैफिक आया. अगर ट्रैफिक आएगा है तो भी मैं कन्वर्जन आखिर में कर पाऊंगी. सो यू डोंट हैव टू नो ईच एंड एवरी KPI. जितना ज्यादा आप चीजें पढ़ेंगे ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है. हर चीज याद कर नहीं पॉसिबल होगी, पर आप जितना न्यूज़पेपर्स और डेटा पढ़ेंगे, ऐसे अलग अलग टर्म इंट्रोड्यूस होते रहेंगे आपको. अभी आप कोई इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ेंगे, उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखेगा आपको, तो वो एक बैंकिंग का एक जार्गन है. NPA is a KPI of the banking वाला thing. So these are new terms which will be keep on introducing itself. आप अगर एक गूगल सर्च मारेंगे तो आपको एक नया टर्म के बारे में पता चल जाएगा. So this ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है वो मैंने इंडस्ट्रीज के उसमें भी सुना है. लाइक when a company does not is not able to repay the loan which it has taken from the bank, they will say that this is a non performing asset or something like that. ऐसा कुछ होता है? तो कंपनीज के लिए देखो, ये वेरी वाइडली टर्म इन द बैंकिंग सेक्टर से होता है. कंपनी के लिए सपोज अगर वो लोन को रीपे कर नहीं पाए और समथिंग, तो वो लाइबिलिटी बन जाता है, वो प्रोविडेंट फंड में चला जाता है, जो मैं आपको बताऊंगी. वो NPA करके नहीं होता, वो प्रोविडेंट फंड में चला जाता है, जहाँ इट्स समथिंग कॉल्ड बैड डेट. कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं, तो मैं रीपे कैसे करूं.
So it's not an asset for them. It is always a liability. For them, for banks, it's an asset because loans दिए ना. मैं आपको बताऊंगी एक एक term. आज का class, मैं आपको आज का class का objective बताती हूँ. So, okay. So, Payal had joined the session and congratulations, Payal. Okay. So the objective for today's session, guys, is, I'll just check whether my recording, yeah. So objective for today's session is understanding the internal factor. Last time we covered the external factors of the top-down approach. Today we are solely going to discuss the internal factor, that is company's financials. So you can write this down as a heading. I think I got this as a feedback. Today I'll try to keep my approach as the, आपको notes बनाने में तो भी आसानी होगी, वैसे मैं approach करूंगी. So I'll not go here and there, not divert too much from the topic, but let us go step by step, and as in when you have questions, you can ask me, but I will not go too deep in it, so that I can stick with the target I have for today, right? Okay. So okay, so I will just so आज हम लोग internal factor पढ़ने वाले, okay? अभी internal factor are things which are not in the hands of the company. So I hope you guys can see it. Okay, can you guys see it? Yeah. तो देखो company Are in the hands of company. हाँ, sorry, are not is cancelled. They are in the hands of the company. They are in the hands of the company. Okay, so देखो अभी कंपनी के हाथ में होती क्या क्या चीजें, पहले वो हम लोग फिगर आउट करते हैं. पहले कंपनी के हाथ में होती है मैनेजमेंट. क्या ह्यूमन रिसोर्सेज को चुनना है, वो कंपनी के हाथ. हम लोग सब लोग कंपनी बना रहे हैं ना, हम वी आर बिल्डिंग अ रियल एस्टेट कंपनी, जहाँ हम लोग को ड्रीम हाउस बनानी है बहुत लोगों की. तो अभी हम लोग को अच्छे ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, गुड आर्किटेक्चर्स की जरूरत है, गुड इंजीनियर्स की जरूरत है. सो ये मेरे हाथ में है, बिकॉज आई एम गोइंग टू डू द हायरिंग प्रोसेस. सेकंड, मेरे हाथ में ये है कि मेरे को अपने ज्योग्राफी, अपना प्रोस्पेक्ट, मेरा क्वालिटेटिव फीचर्स इन टर्म्स ऑफ मेरे को कहाँ, where do I have to go, with whom do I have to partner, ये सब मेरे हाथ में है ना. all of this is in my hands. Then third question, as in when I am building new houses, then in my hands then comes sales. मैं कितने लोगों को बेचूंगी, मेरे रॉ मटेरियल्स क्या क्या होंगे, ये सब मेरे हाथ में. कोई और नहीं बताएगा कि, कोई और नहीं आके बताएगा कि पूर्वी तुम आज ये खरीदो, पूर्वी आज वो खरीदो. मेरे को कितने लोगों को बेचना है, मुझे क्या चीज बेचना है, मुझे क्यों उनको बेचना है, मुझे कितने प्राइस में बेचना है, ये सब मैं डिसाइड करूंगी. सो अभी क्योंकि मैं डिसाइड करूंगी, तो मेरा, since it's in my hands, I have to be accountable to it, accountable to myself. And then as in when I'm raising new capital, I'm getting public investors, I'm accountable to them, because it's their money through which I'm able to do all of this. Each is the cost. Having HR is a cost, having land is a cost. Only sales, only and only sales is the one thing which brings money inside the company. Rest all, everything leads to outflow of cash. Okay, आप लोग जो टर्म्स में बोल रहे हो वो ध्यान से सुनना. इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश. Sales is an inflow of cash, rest is an outflow of cash.
Now I'm building my company, I'm growing it together. So now the most important thing is that I have the financials, that is sales, raw materials, employees, everything in my hands. अभी जैसे कंपनी बड़ा होता है, I have something, मेरे जब देखो, first you have to understand there is something called qualitative and quantitative. You can write this down. Qualitative and quantitative. So you can split your paper as heading being internal factor divided into two: qualitative, quantitative. Under the qualitative factors, your management, your HR, your places, your geographies, your growth, your future prospects, everything will come in that, inside that. Under your qualitative, so after this, I am splitting under my qualitative. Under my quantitative is something which is really important, that is financials. I am now, all of this is being accountable to my shareholders. Why am I doing all of this mehnat? For my shareholders, because they are the ones who have put money. So I have to bring them. पैसे तभी डालेंगे जब उनको कुछ रिटर्न मिलेगा. आप एफडी में तभी पैसे डालोगे 10 लाख when you get a 9% interest. If you're not getting interest, then why would you even give an FD some amount? So your shareholders want something back to you, and since they are getting, it's a risky thing, they're just giving you the money without any interest, without anything. इतना तो डिजर्व करते हैं उन लोग. They need to know what are the decisions taken by the company. So ये सारा decisions जो होता है, जो शेयर होल्डर्स को बताया जाता है, वो कैसे बताएं? कंपनी एक एक करके कॉल तो नहीं कर सकती. अबे 10 लाख शेयर होल्डर्स है, कंपनी के नॉट कॉल ईच पर्सन. आप लोग अभी ऐसे लिखो, these called quantitative and qualitative merge into one and become an annual report. They become an annual report, and this becomes our hero for everything. Okay, so the full internal analysis of a company is mainly done through this, because it covers qualitative and quantitative both. Okay, so this is the most important KPI. Now I'll just my screen नीचे थोड़ा. You said financials will come in qualitative. Quantitative. Quantitative, right? Qualitative would be your management, HR, growth, and other things, right? Exactly. Qualitative is everything which is on decision. Defining the basically your which is based on judgment, skills, experience, all of that. Even quantitative is based on that, but it's post number. Qualitative is based on intuition kind of thing, right? So I will. Okay, perfect. So now I've told you that this report is mainly performed for shareholders, and it documents both the qualitative and the quantitative. Now, so what happens is, like जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, like the good investors, they instead of just, I personally read a lot
I'm a ferocious reader of newspaper, and I read a lot of books. But if people are starting off, reading annual report is one of the best ways of knowing or understanding a business. उसमें सब कुछ होता है, आपको है ना, कोई बिजनेस बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. आप एक एनुअल रिपोर्ट ढंग से पढ़ ली ना, आपको कहीं ज्यादा नॉलेज होगी देन एनी अदर पर्सन हु इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टीसीएस ऑपरेट्स. If you want to understand how TCS operates, just read the annual report. It is that good. So that's why any decision is taken, very person who develops an authoritative or an analytical mind for an annual report reading is on the right path to become a very good investor. And that has been achieved by one of the most famous investor, Warren Buffett. Just write his name down. It's very just read about him, I would say. Warren Buffett. जैसे बोलते ना कि लता मंगेशकर वॉज सोनी की चिड़िया इंडिया की. ही इज लाइक द गॉड ऑफ something called value financial markets, or something called value investing, which I will tell you later. He was like he is, sorry, he's not was, he is present right now, but he is like the god of value investing. Okay, so let me erase all of this. Okay, so the discussion on annual report, आप लोग समझ गए होंगे एनुअल रिपोर्ट कितने पेजेस के होते हैं. अप्रोक्सीमेटली इट्स अप्रोक्सीमेटली 300 पेजेस. इसलिए बोलते हैं someone who has read an annual report has achieved a lot, because reading 300 pages is no joke, because it's not as easy as someone reads a book. It has lots of technical jargons, it has lots of uh, things where people have to be very presence of mind बहुत होना पड़ेगा to really understand it. तो फिर it is as good as reading nothing. So that's why a person cannot read everything of the annual report, right? हम लोग इंसान हैं, we have some limited time, but people who are really invested in this can do it, but everyone cannot do it. So इसका भी एक easy solution है ना? There are, as economy, as industry, for internal factor also of an annual report, there are certain KPIs. KPIs का full form please जल्दी से बता दो. Key performance. Exactly. Key performance indicator. Key performance indicator is something which I value the most. मतलब ऐसा क्या चीज देखना चाहिए जब मैं टेबल भी परचेज कर रही हूँ, मुझे टेबल में पता हो तो नहीं होना चाहिए कि मुझे टेबल में क्या देखना चाहिए. उसका वुड कैसा है, या फिर वो अफ्रीका से आया या लंदन से आया. मेरा माय केपीआई शुड बी दैट उसका वुड कैसा है, अफ्रीका से लंदन से आया इज नॉट रियली गोइंग टू मैटर. वैसे ही फॉर एन एनुअल रिपोर्ट there are certain KPIs, and some of the KPIs are here in front of you. So first, chairman's letter. Just keep writing it down. उसके against लिखना chairman's letter. आप लोग मुझे बोलना क्या होगा, qualitative या quantitative? Qualitative. Qualitative. Perfect. This is going to be qualitative. Then what is this? Financial quantitative. Quantitative. Perfect. What about this? Director's report will be qualitative. Qualitative. देखो ये है ना, मैं सॉरी मेरा मार्क बहुत वो मोटा है, मैं इसको ठीक करती हूँ. हाँ. Yeah. So
this thing is the most important. This thing is really important. KPI में भी सबसे इम्पोर्टेंस में एक चीज को देती हूँ, which is MD&A. The full form is Management Discussion and Analysis. ये बहुत जरूरी होता है एक एनुअल रिपोर्ट के अंदर पढ़ना. MD&A. So you can give a star mark to this. Can you repeat the full form? Management Discussion and analysis. Yes, discussion and analysis. Okay. Then financial performance is quantitative, as you guys said. Financial statements is again quantitative. Okay. देखो अभी है ना एनुअल रिपोर्ट में बहुत सारे क्वालिटेटिव चीजें हैं, पर मैंने इसमें कवर नहीं की है बिकॉज it will be too lengthy for you. Okay, for you and for anyone, and is इतना मतलब for right now at the moment it's not very important. So if you've read this, it's more than enough. Okay, so आप लोग फटाफट ये लिख लीजिए. I will give you a live example of what an annual report looks like. Sorry, you want to see that screen, right? क्या आप लोग ने लिख लिया? Right? So guys, I just went to Google. I typed the annual report of TCS and I got the latest annual report of 24 का अभी मार्च एंड हुआ इसलिए निकला नहीं है. 23 का is the latest. So I am giving you live कि क्या क्या मैं पेज बाय पेज जा रही हूँ, फटाफट स्क्रॉल करूंगी, पर हम लोग जो भी पॉइंटर्स है केपीएस है वो मैं आपको बताऊंगी कैसे दिखता है, क्या दिखता है. This is about TCS. ठीक है. All of this is fine. Board of directors, knowing few names is important. Suppose if I'm analyzing TCS as a company, knowing the chairman's name is important to me, and maybe the CEO of the company. Now he is the CEO. Today, K. Kritivasan is the CEO. So now I'll kind of know his name. I'll remember his name. Then okay, ठीक है, ये सब ठीक है. अभी देखो ये जो है ना ये important है मेरे लिए. Letter from the chair. अभी इसमें देखो इसमें क्यों important है मैं आपको वो भी बताती हूँ. So if you see how is he addressing? How is he addressing? Dear shareholder. देखो not dear bankers, dear employees, dear shareholder, because its annual report is mainly given or made for a shareholder because we are the people who are investing money, right? So इसमें देखो chairman के letter में the points which are usually covered are how has little bit of the company performed, a little bit of history. More important is very important is the future outlook. ये बताता है चेयरमैन कि कंपनी आगे क्या करने वाली, इसलिए हम लोग को चेयरमैन का लेटर इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है. उनका क्या पर्सपेक्टिव है, वो 5 साल के बाद where do they see the company as, because the top management are the ones who are going to take strategic decisions for the company, and as shareholders I am concerned about the future of the company. Else, if the future is not good, then why would I even invest today? है ना? So I want to understand the future outlook, and that's one of the main reasons why. इसमें फिर पता चलता है main
क्या बोलते strategic decisions कैसे, for example if they are doing any mergers with the company, or there any or are they acquiring any company, or they are going to a new geography. All these are strategic decisions which cannot be taken by an employee. Only the top management or the board will be the one taking it, right? They are the ones who have a control of the decisions of the company. So all of these are something which your chairman more or less covers in his letter, and that's why it's very important. ठीक है. So अभी chairman का letter हो गया. अभी I'll just go down. So letter to the shareholders. See, all these management letters, all of them are really important. पर अगर आपके पास time नहीं है, तो letter from the chairman is more than enough, especially for TCS, because N. Chandrasekhar, if you have a little bit of knowledge, if you know आप लोग को while you read, you will understand that he has been one of the most prime person of TCS. So his take on where TCS is heading is something more important than anyone else in the company for me. For me as a shareholder. अभी मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं बाकी का पढ़ूं ना पढ़ूं वो मेरी चॉइस है, पर मैं उनका जरूर पढ़ूंगी, बिकॉज आई हैव अंडरस्टूड him, his importance in the company. वैसे ही as in when you read a lot of data, you will understand कि हाँ, this management has a powerful, or this person has a powerful voice in the company. ठीक है. So अभी थोड़ा थोड़ा अभी TCS का बिजनेस मॉडल. TCS बिजनेस मॉडल का मतलब ये कि हाउ डज TCS एक्चुअली जनरेट रेवेन्यू, मतलब आता कैसे पैसा इनके पास. पैसे आते हैं जो भी, जैसे कि मे बी दे गिव आउटसोर्सिंग सर्विसेज, मे बी गिव सॉफ्टवेयर्स, दे प्रोबेबली गिव हार्डवेयर, यू नेवर नो. उनके पास रेवेन्यू कौन से किस हिस्से से आता है, इज बेसिकली नोन एज अ बिजनेस मॉडल. So you can write the meaning of business model as well. जैसे TCS तो अभी बड़ी कंपनी हो गई. अगर मैं कोई अननोन कंपनी का एनुअल रिपोर्ट पढ़ रही हूँ, तो अब मेरे को कैसे पता कि ये कंपनी थी, कि ये कंपनी कोल का काम करती है. बट कंपनी पैसे कैसे कमाती है, वो कोल माइनिंग करती है या कोल को बेचती है, इज व्हाट अ बिजनेस मॉडल is going to precisely tell. That's why knowing a business model is also important when I'm starting off reading an annual report. देखो अभी हर annual report of every company is very differently designed. Maybe the कोई और दूसरे annual report में business model will not be like in the 15th page. It can be towards the beginning, it can be towards the end. But more or less, these are the topics which are covered in each annual report. That's why I will just go down now. Okay, financial capital is basically उनका year on year growth क्या हुआ है. Okay, human capital is basically human resource. Then intellectual capital is basically उनका R&D में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, उनका कॉपीराइट्स में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, रिसर्च, स्टार्टअप्स, पार्टनर्स. आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा. प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स में मतलब उन्होंने उनके क्या क्या सेगमेंट्स है जिससे उनके पास उन लोग बेचते हैं अपने क्लाइंट्स को. So these are the products they have through which they get sales from their clients, right? So these are the products. Social capital is CSR activities with their human resource, with the employees, with the community and stuff like that. Okay. So natural capital is anything with the environment. मतलब the pollution, industry, carbon rate, etc. All of that. Okay. So देखो अभी तो बहुत बड़ा है, तो I will not tell you each and everything. Now I'll just go to a very फटाफट मैं उस पेज में जाती हूँ जहाँ देखो financials of the companies usually comes towards the end
ऑफ अ रिपोर्ट, ठीक है, यूजुअली आखिर में टुवर्ड्स द एंड आते हैं, क्योंकि जब वो पूरा बता देते कि कंपनी ने क्या क्या किया, फिर वो, क्योंकि फाइनेंशियल इज द मोस्ट अवेटेड थिंग ऑफ एन एनुअल रिपोर्ट, तो पहले सब कुछ जान लो फिर आप इसको पढ़ो. इस is how it is designed. Where is it? हाँ, see, ठीक है, this is the financial reports of the company, consolidated balance sheet, or then P&L. आप लोग एकदम डरिए मत. All of this is, I'm just telling you how it looks. इसलिए आप थोड़ा फील वाला फैक्टर लाने के लिए ही मैं आपको दिखा रही हूँ. मैं आपको ये नहीं बोल रही कि यार you have to go through it or anything. I'm just telling कि थोड़ा फील लाने के लिए मैं आपको ये एनुअल रिपोर्ट दिखा रही हूँ कि फाइनेंशियल जैसे दिखता है. there's lots of पहले एक ऑडिट रिपोर्ट होता है जो मैं आपको बताऊंगी बाद में. देयर इज समथिंग कॉल्ड बैलेंस शीट, देन देयर इज P&L, एंड देन देयर इज कैश फ्लो. ठीक है, सो दिस इज समथिंग व्हिच आई वांटेड टू शो यू लाइव, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया. गाइस, यू गॉट एन आइडिया ऑफ हाउ इट लुक्स. थोड़ा सा फीलिंग आ गया कि हम लोग इंटरनल एनालिसिस क्या होता है, क्या करते हैं कंपनीज में, कैसे करते हैं. और गुड, ठीक है, डन. Yes. Yes. चलो, सो नाउ यू योरसेल्फ विटनेस्ड कि कितना बड़ा होता है एनुअल रिपोर्ट, है ना. तो देखो, अभी हम लोग को वी डोंट हैव टू बी स्कैर्ड एनुअल कि भाई ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा, ये वो करना पड़ेगा. आप लोग अभी आपका पेज कैसे डिवाइडेड है. एनुअल रिपोर्ट ऐसे आपका आ गया, एनुअल रिपोर्ट कर लिया आपने. अभी एनुअल रिपोर्ट में आप लोग एक ऐसे 3 हिस्से, ऐसे 3 कर लो, ऐसे बनाओ. उसमें लिखो बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो. ऐसे करो फटाफट. ठीक है, देखो अभी मैंने बोला कि आफ्टर द चेयरमैन्स रिपोर्ट वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर इंफॉर्मेशन फॉर एनी शेयर होल्डर इज द फाइनेंशियल्स. ठीक है, सो अभी फाइनेंशियल्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और P&L. बैलेंस शीट का मतलब क्या हुआ, चीजों को बैलेंस करना, एज सिंपल एज दैट. P&L का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट दिखाना या कंपनी का लॉस दिखाना. प्रॉफिट और लॉस बेसिकली कंपनी बताती है उसमें कि मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है. और कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब हुआ है कैश कंपनी में कितना आया है और कंपनी से कितना गया है. एज सिंपल एज दैट. इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते और ज्यादा. जो मीनिंग है वो ही बेसिकली वो ही मीनिंग आपको वापस से मैंने बता दिया. ठीक है, तो अब ये बैलेंस शीट का मतलब है बैलेंस करना सब चीज को. अभी मैं फॉर एग्जांपल आप लोग कुकिंग कोई डिश बना रहे. अभी सपोज उस डिश में अगर नमक बहुत ज्यादा हो गया तो आप लोग बैलेंस कैसे करेंगे, क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए उसको. आलू डालोगे या क्वांटिटी बढ़ाओगे? क्वांटिटी बढ़ाओगे. परफेक्ट, क्वांटिटी बढ़ाओगे इधर थ्रू मोर सब्जी या पानी के थ्रू या कैसे भी करके, वॉट एवर, चीनी डाल के कुछ और स्पाइसेस इससे डाल नमक के. कम हो जाए. एग्जैक्टली. सो वैसे ही कंपनी के पास एक चीनी होता है और एक शक्कर होता है. 2 चीजें होती है कंपनी के. एक चीनी होता है और सॉरी, एक चीनी होता है और एक नमक होता है. चीनी हुआ हमारा एसेट, मीठा मीठा, और नमक हुआ हमारा लाइबिलिटीज. ठीक है, चीनी वो चीजें होती है जो जो हम लोग को, एसेट्स वो चीजें होती है जो
will have थोड़ा डिश को थोड़ा टेस्ट टेस्टी बना देती है, थोड़ा यू नो इट ब्रिंग्स द स्वीटनेस इनसाइड द डिश, एंड थोड़ा जरूरी हो जाता है स्पेशली फॉर सर्टेन डिशेस, जैसे इन स्वीट्स इन मिठाई एंड ऑल ऑफ दैट। रिच बना देती मैम। रिच बना देती, एग्जैक्टली, मेरे को वर्ड नहीं पता, रिच बना देती, एग्जैक्टली। अभी नमक नहीं लेते, नमक इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल बिकॉज नमक इज समथिंग विच इज यूज्ड इन एवरी डिश एंड इज एज इम्पोर्टेंट एज चीनी। सो आई चूज अ लाइबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल कोई और स्पाइसेस जो इतना काम नहीं आता। देखो सब, मैं जस्ट फॉर एग्जाम्पल जस्ट ले रही हूँ मिर्ची। मिर्ची कभी कभी जरूरत होती है, कभी कभी जरूरत नहीं होती है। हमारी लाल लाल मिर्च है ना, हमेशा जरूरत नहीं होती है। तो वैसे ही कंपनी के एसेट्स वो होते हैं जो कंपनी का बैलेंस शीट कंपनी को थोड़ा रिच बना देती है। क्या बना देती है? थोड़ा रिच बना देती है। वो एसेट्स वो होते हैं, जैसे सपोज आपके पास अगर लड्डू है, बहुत सारे लड्डू है, तो आप लड्डू को बहुत बना बना के लड्डू से और कोई मिठाई भी बना सकते हो। मतलब दे कैन बी मोर पोटेंशियल थिंग्स आल्सो यू कैन डू विद द सेम। शक्कर से आप लड्डू भी बना सकते हो, आप पेड़ा भी बना सकते हो, बहुत कुछ बना सकते हो। तो वो एक मिठाई, एक ही मिठाई पर आप बहुत चीजें यूज कर सकते हो, आप बहुत यूज कर सकते हो। पर मिर्ची में हर चीज में नहीं डाल सकते ना, मोस्टली तो सब्जी में ही डलती है। जैसे अभी हाइपोथेटिकली वो ही मानिए कि मिर्ची आप बस सब्जी में ही डाल सकते हैं। वैसे ही एसिड्स वो चीजें होती है जो आपकी कंपनी में एक बार आ गई, वो आपको और सेल्स करने में हेल्प करेगी, It आपको और increases the value of the company. एग्जैक्टली वो पैसे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेगी। Assets are those which will help you make more money. But liabilities are those which you have to pay back. तो अगर आपने बहुत सारी मिर्ची डाल दी तो आपको पानी पिलाना पड़ेगा आप गेस्ट को, तो you have to pay back. Assets are something which you own, liabilities are something which you owe. As simple as that. Clear? यस। परफेक्ट। तो अभी आप लोग क्या मुझे थोड़े एग्जांपल्स दे सकते हो एसेट्स के? एनी एग्जांपल ऑफ अ कंपनी? Property, land, office, or whatever. प्रॉपर्टी, Debtors. लैंड, ऑफिस, डेटर्स। परफेक्ट। लाइबिलिटीज? Creditors, Credit. bank Loan. only. लोन, Loan, bank. लोन, क्रेडिट। परफेक्ट। सो ये आपको मतलब समझ में आ गया है ना? So balance sheet is clear. Now coming to P&L. Yes. P&L or cash flow and P&L. So first I'll cover P&L, then I'll go to cash flow. So P&L is basically, देखो अभी हम लोग एक we are making a dish, okay? So अभी now if I'm making a dish, so I'm just hypothetically imagine yourself you're operating a restaurant, ठीक है? अभी मेरे को एक डिश बनानी है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे पोहा बनाना है, तो पोहा बनाऊंगी मैं। पोहा के बनाते वक्त क्या क्या चीजें यूज होगी? मेरे को हल्दी चाहिए होगा, मेरे को पोहा चाहिए होगा, मेरे को पानी चाहिए होगा, फिर और क्या क्या, मेरे को फ्यूल चाहिए होगा, फिर Oil, बर्तन चाहिए होंगे। Oil, ऑयल चाहिए होगा, vegetables. यूटेंसिल्स। salt. गैसेस चाहिए होगा, एंड बहुत कुछ चाहिए होगा। बट फिर मैंने करते 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 पोहा बना ली। मैंने कितने 10 प्लेट पोहा बना ली।
और एक प्लेट, अभी मैं एक रेस्टोरेंट में हूँ, मेरे को पोहा का ऑर्डर आया, एक पोहा का प्लेट में 10 रुपए में बेच रही हूँ, हाइपोथेटिकली। ओके, 10 रुपए में आजकल कुछ नहीं मिलता, बट ओके, जस्ट हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो अगर मैं प्लेट्स, मेरे जो भी कॉस्ट है ना, ये पोहा खरीदा, हल्दी लिया, ये लिया, ऑयल लिया, ये गैस लिया, वो लिया, ये सारे मेरे कॉस्ट हो गए, और मैंने जब पोहा बेचा तब मेरे पास पैसे आए, तो वो मेरा सेल्स हो गया। क्लियर? Yeah. क्लियर, डन। ये अभी मेरे ये फिगर पे कैसे आई, सेल्स कैसे आई मेरे पास? पहले तो मेरे पास कितने पोहे बेचे मैंने, कितने पोहे बेचे और किस प्राइस में बेचे। मैंने 10 प्लेट पोहे बेचे, 10 रुपए का एक प्लेट, तो मेरे सेल्स कितने हो गए? 100 रुपए। 100 रुपए। So this is known as revenue. The technical term is revenue. ये पूरे पीएनएल का सबसे इंपॉर्टेंट फिगर होता है, रेवेन्यू। आपके पास पैसे कितने आए। मैम फिर इसी में प्रॉफिट और लॉस पता करेंगे, भाई मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एग्जैक्टली, रेवेन्यू आपका एक बार जनरेट हो गया, तब आप है ना कॉस्ट, आप लोग मतलब मैं क्या ही बोलूं, मतलब इतना इजी है, आप लोग बता दीजिए अभी क्या करना है। कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा, एक बार रेवेन्यू मिल गया, एक बार कॉस्ट मिल गया, फिर क्या करना है, माइनस करना। माइनस करना है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और फिर प्रॉफिट या लॉस मिल गया, एज सिंपल एज दैट, बन गया हुआ पीएनएल। बस इतने ही, और थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशंस करते हैं कंपनीज, पर हम लोग को उससे लेना देना नहीं है अभी के लिए। हम लोग को बस ये मिल गया, रेवेन्यू मिल गया, माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस। डन। तो चलो हमारा पीएनएल भी खत्म हो गया। अभी आते हैं हमारे कैश फ्लो पर। कैश फ्लो कोई मुझे बता सकते क्या है? अगर मैंने पीएनएल कमा ली तो मुझे कैश फ्लो बनाने की जरूरत क्यों है? Cash Okay. flow will be Yeah. before P&L, right? No. No? To monitor the income, how it is coming and going. Inflow and outflow of cash. I'll tell you why cash flow is important. So देखो, अभी मैं पोहा बना रही हूँ, ठीक है, मैं पोहा बना रही हूँ, बेच रही हूँ, बना रही हूँ, बेच रही हूँ, बना रही हूँ, बेच रही हूँ, पैसे आ रहे, पैसे मुझे आ तो रहे हैं, पर पैसे कैश में भी आ सकते हैं, क्रेडिट में भी आ सकते हैं। जब बड़ी कंपनीज होती, जैसे जैसे कंपनीज बड़ी होती जाती है, वैसे वैसे कैश का सेगमेंट कम होता जाता है, क्रेडिट का सेगमेंट Credit. ज्यादा होता है। हम्म। क्रेडिट का मतलब ये नहीं कि क्रेडिट कार्ड, Yeah, understood क्रेडिट that. का मतलब ये हुआ कि मैंने प्रॉमिस किया कि हाँ मैं 3 महीने बाद आपको पे करूंगा, इसका मतलब होता है क्रेडिट। मेरे उधारी। पास कैश तो अभी नहीं आया ना, क्या मेरे पास कैश आ गया? हम्म। नहीं, Mhm. मेरे को बस एक प्रॉमिस मिली है कि भाई मेरे को 3 महीने बाद मिला, मेरे पास कैश तो बस 10% आया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने पोहा 100 रुपए का बेचा, मेरे को ओनली 10%, 10 रुपए आज मिले, वो बंदा प्रॉमिस किया कि 90 रुपीज में तुमको 3 महीने बाद दूंगा। तो दिस 90 रुपीज, देखो सेल्स मैंने 100 रुपए का किया है, सेल्स हो गया मेरा 100 रुपए का, पर मेरे पास आए हाथ में कितने, बस 10 रुपए। Yes. इसको बोलते हैं कैश फ्लो। So 10 rupees is cash flow. 10 No, रुपीज the whole thing is Is the no 10 rupees is 10 रुपीज invest? Difference between the incoming and outgoing. नो नो नो, इनकमिंग आउटगोइंग the भूल whole जाओ आप thing is लोग। cash flow. Incoming, and I mean difference between the amount spent नहीं and नहीं the नहीं, आप लोग वो सब भूल जाओ, डिफरेंस डिफरेंस में आती हूँ उस पर। आपको ये समझ में आ गया कि 10 रुपए मेरे कैश हो गए, हाँ हाँ। Yeah. Okay. बस ठीक है, डन। आप लोग अभी वो, अभी आप लोग इनको आउटको अभी वो चिंता मत करो। देखो अभी मैं कैश फ्लो का स्टेटमेंट जब बना रही हूँ, तो मैंने बोला कि मेरे पास कैश अंदर कितना है, 10 रुपए है। अभी मैंने एक्सपेंसेस जब मैं कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं हल्दी ले रही हूँ, गैस ले रही हूँ, जो भी इंग्रेडिएंट्स में सपोज टेबल्स बुक कर रही हूँ, वेन्यू ले रही हूँ, वेसल्स ले रही हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैंने
ये सब के लिए 1000 मैंने, मेरे कितने हजार। पैसे लग गए, फॉर एग्जाम्पल 200 रुपए लग गए मेरे। ये 200 रुपए मैंने कितने कैश में दिए और कितने मैं बोली मैं बाद में दूँ। 10 and 90। हाँ, जितना भी है, जो भी आपको, फॉर एग्जाम्पल हल्दी का पैसा आपको शायद अगर तुरंत देना है, दो गैस का पैसा आपने प्रॉमिस किया कि भाई गैस वाले को बोला कि एक बार 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं 3 महीने बाद होगा, तो कैश अभी मेरे हाथ से इतने गए नहीं है, तो फॉर एग्जाम्पल कैश समझ लीजिए कि मेरे हाथ से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए गए, तो मेरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में बस 100 रुपए आएंगे। 10 रुपए आए, 100 रुपए गए, बन गया आपका कैश फ्लो। हम्म, जितने पैसे आए और जितना बस कैश, ओनली कैश, ओनली कैश, एज द नेम सजेस्ट, ओनली कैश इज समथिंग विच आई एम कंसर्न्ड अबाउट। क्रेडिट में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, प्रॉमिस क्या हुआ, वो सब भाड़ में गया। मेरे को कैश कितना आया, मेरा कैश कितना गया, इज बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी ये मैं क्यों इतना एम्फेसाइज कर रही हूँ कैश के ऊपर, मतलब क्यों, रेवेन्यू क्यों नहीं, वाई ओनली कैश? कैश इसलिए क्योंकि आप लोग ने वो टर्म सुनी है ना, लिक्विडिटी, जो मैंने बिगनिंग में बताई थी। या, लिक्विडिटी का मतलब ये है कि आपके पास अभी पैसे कितने हाथ में। मेरे को अगर आज अभी मेरा अगर गाड़ी ब्लास्ट हो गया, तो मेरे पास अभी कितने पैसे हाथ में कि मैं तुरंत उसका रिपेयर कर सकूं। अगर वो बंदा प्रॉमिस किया कि मैं 3 महीने बाद रिपेयर करूंगा, तो मेरी तो गाड़ी बिगड़ी है ना, मेरे को अभी पैसे चाहिए। उसके लिए हम लोग कैश फ्लो बनाते हैं। कैश फ्लो हम लोग को बताते हैं कि भाई हमारे पास पैसे अभी हाथ में कितने हैं। इट गिव्स यू द स्टेटस ऑफ योर बैंक लिक्विडिटी। हाँ, मतलब हर मंथ कितने आएंगे और कितने जाएंगे, वैसे ही ना। एग्जैक्टली, हाथ में कितने आएंगे कितने जाएंगे, अगर हाथ में आए तो ये पॉजिटिव है, हाथ से गए तो ये नेगेटिव है, एज सिंपल एज दैट। बस समझ गए? चलो डन। सो अभी तक कुछ कंफ्यूजन, समथिंग विच यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, विच यू हैवंट अंडरस्टूड एट ऑल, जो भी है अभी क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। इज देयर एनीथिंग you guys have? सब कुछ, everything is clear? या, Okay, perfect. देखो अभी मैं सोची थी कि I'll go in depth, but प्रॉब्लम मेरे को डेप्थ में जाने में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं बहुत कुछ बता दूंगी, देन आखिर में खिचड़ी बन जाएगा हमारा। खिचड़ी, खिचड़ी इज लाइक, मतलब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन टाइप्स, मतलब आता भी नहीं भी आता सब कुछ। तो आप लोग को इतना आइडिया होना चाहिए कि मेरे कैश फ्लो और पीएनएल और बैलेंस शीट का पोजीशन कैसा है, मैं कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, और कितना एक्चुअल हाथ में कितना पैसा है अभी। फटाफट से मैं स्क्रॉल कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, सो इसलिए मैं एक काम कर रही हूँ इस बार। इंस्टेड ऑफ going into detail of each financial statement, I'm only and only covering P&L. आप लोग अगर P&L समझ जाओगे ना, तो it will be more than enough to do some analysis. इसलिए I'm only covering P&L, and for you it is also going to be easier, क्योंकि it's much more easier to do this than doing anything else in this world. Revenue minus expenses is profit, as simple as that. ओके, सो आप लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, प्रॉफिट एंड लॉस। See, Purvi, I don't think so. P&L we need to
explain it in so detail. Everyone knows about the PNL and all. The only thing, if you can explain that the EBITDA and the other things, that Okay. and that also it's not needed to explain in. I don't think so. We need to go in so detail to know everything, because the basic knowledge should be enough for. It's depend on the person to person. राइट, सो आप लोग ठीक है, आप लोग हाँ, मुझे मतलब बता किसको दीजिए। क्या समझना है आप ही बता दीजिए, क्योंकि ना, मतलब हमको सिर्फ जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एवरीवन नोज राइट, एंड द टैक्सेस भी सबको पता है। जो पॉइंट्स नहीं पता है और जो रियली नीडेड है हमको स्टॉक एक्सचेंज का मेन रीजन हमारा क्या है कि हमको स्टॉक मार्केट के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। तो बेसिक हमको फाइनेंशियल में हमें क्या क्या पता होना चाहिए। फाइनेंस में उसका सिर्फ हमको प्रॉफिट लॉस मालूम पड़ गया, उसका एबिटा मालूम पड़ गया, उसका एबिटा होता क्या है वो आई डोंट नो, सबको पता भी है कि नहीं है एबिटा के बारे में, वो आप बता दो। कैश फ्लो जैसे आपने बता ही दिया कि कैश फ्लो क्या है, इनकम कितनी है, और वो मतलब जो मेन चीजें हैं हम वो कवर कर रहे हैं तो हमारा जल्दी, क्योंकि हमारे पास दो क्लासेस तो रही हैं हमारी, जो हमारे जो मेन जैसे आज था कि हमें एसेट एलोकेशन के बारे में मालूम होता है। एसेट एलोकेशन के बारे में मतलब जब हमें मालूम पड़ेगा जब हमें बेसिक ही हमारे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं एक्चुअली। राइट, आपने एब्सोल्युटली सही कहा रेखा। सो आप लोग मुझे एक स्टेटस बता दीजिए, क्या ये एक फेमिलियर टॉपिक है सबके लिए, सबको ये टर्म्स पता है या फिर नहीं पता है? बिजनेस ये तो सबको ही पता है, बस आप जो एबिटाट के बारे में था वो बता दें, बाकी आगे कैसे वो मतलब लेना है शेयर मार्केट में, कैसे दूसरे जो टर्म्स है वो समझने हैं हमें मेन तो आपको मुझे ये बेसिकली लग रहा है कि पूर्वी हम बहुत डिटेल में जा रहे हैं, या मतलब ये इतना हम लोग के अकाउंट्स के बारे में हमें नहीं नहीं पता करना जरूरत। है, मतलब हमें जरूरत भी नहीं है। मतलब किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को में अगर आपको इन्वेस्ट करना था, आपको टेक्निकल यू शुड बी मोर या स्ट्रॉन्गर रेदर देन द फंडामेंटल। फंडामेंटल तो आपको हमको वैसे टीसीएस वी नो दैट, हाँ टीसीएस मतलब उसका अगर हम उसका कैपिटल बैलेंस देख लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि उसके फंडामेंटल इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग राइट। तो रेखा, देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट हियर। आपने जो बोला वो भी एब्सोल्युटली सही है कि टेक्निकल्स बहुत जरूरी है, फंडामेंटल्स भी बहुत जरूरी। शायद टेक्निकल्स आर रियली इम्पोर्टेंट, but for you right now, but I personally value fundamentals over technicals. I'll tell you why. Because fundamentals का आखिर में the end goal is valuation. The whole drama and महाभारत जो मैं कर रही हूँ is because of this. मैं इसका मतलब समझाती हूँ, वैल्यूएशन का मतलब। देखो, एक एप्पल मैं 100 रुपए में भी खरीद सकती हूँ, 1000 रुपए में भी खरीद सकती हूँ, ठीक है। एप्पल का चार्ट बहुत अच्छा जा रहा है, एप्पल सब लोग खरीद रहे हैं, एप्पल सब लोग बहुत खरीद रहे हैं, सब ऊपर जा रहा है, इट्स वेरी गुड। पर एक इंसान इधर खरीदता है और एक इंसान इधर खरीदता है, ये इंसान हैज मोर स्कोप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, ये इंसान इतना से प्रॉफिट बनाता है। ये जो पॉइंट है ना कि कब किस वैल्यूएशन पे घुसना है, ये आपको टेक्निकल्स नहीं बता सकते, ये फंडामेंटल्स ही बताता है। और फंडामेंटल्स को जानने के लिए प्रॉपरली हम लोग ये सब चीज कर रहे हैं, पर अगर हम लोग को नहीं करना है तो डिटेल में मैं नहीं करूंगी। ओनली रीजन आई वाज वेरी मच इन डिटेल ऑफ बैलेंस शीट वगैरह इसकी आपको एटलीस्ट टर्म्स पता चल जाए। अगर नहीं आप लोग को ऑलरेडी पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता क्योंकि उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप में फटाफट अभी आगे बढ़ सकती हूँ। आप वैल्यूएशन के बारे में कैसे कह रहे हैं, मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि द एंट्री पॉइंट यू मीन टू से द एंट्री पॉइंट राइट, नो 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 when to enter and नो How to figure out what is the valuation of the company? कंपनी। सो देखो, वैल्यूएशन क्या होता है ना, so let me tell you through an example। हाँ हाँ ठीक है, देखो अभी अभी बहुत बुल मार्केट है, अभी सब ऊपर जा रहा है ना, everyone knows everything, the market is really really rising।
सो राइट नाउ देयर मार्केट, जैसे मैंने पहले भी बताया था, मार्केट ऐसे सीधा तो नहीं बढ़ेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेखा जो आप बोल रहे हो ना टेक्निकल एनालिसिस, वो टेक्निकल एनालिसिस होता है ये पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, ये एंट्री पॉइंट हो गई, अभी थोड़ा ऊपर गया, मेरा टारगेट अचीव हो गया, अब एग्जिट कर लो। वैल्यूएशन का मतलब होता है कि देखो आज कंपनी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का एक शेयर प्राइस है, पर मैंने जब वैल्यूएशन की तब मेरे को पता चला कि एक्चुअली कंपनी का वर्थ बस 300 रुपए है। तो चाहे जितना भी ऊपर, चाहे जितना भी स्टॉक नीचे आए, चाहे जितना भी ऊपर जाए, जब वो एक्चुअली इस वैल्यू पर पहुंचेगा तब भी मैं खरीदूंगी, क्योंकि मेरा वैल्यूएशन ये डिसाइडेड है। ये 10,000 रुपए में मैं अगर खरीद ली, उसका वर्थ उतना है ही नहीं, मैं नकली सोना खरीदी हूँ बेसिकली। पर वो जब गिरेगा तब एकदम गंदी तरीके से गिरेगा, उसका वर्थ तो होना चाहिए कंपनी का। अभी मैं अगर शेयर का प्राइस 300 रुपए है पर वैल्यूएशन है 500 रुपए का, तब 200 रुपए का मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है कि यार 200 रुपए का मार्जिन है मेरे पास, वो 500 रुपए तक जा सकता है शेयर। और मैंने जब वैल्यूएशन करके पता करी है ये 500 रुपए तक जाएगा, तब मैं उसको अभी खरीद लूंगी, चाहे वो जितना भी ऊपर हो स्टॉक, वो 52 हाई के पास ही क्यों ना हो, पर मैं अभी उसको खरीद लूंगी, क्योंकि मैं उसको वैल्यू करती हूँ उतना। वो मुझे टेक्निकल एनालिसिस नहीं बता पाएगा। नहीं, हाँ वही मैं कह रही हूँ कि मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस और रेवेन्यू एंड एक्सपेंस से ज्यादा जो मेन जो पॉइंट्स है ना, एबिटा एंड ईपीएस पीई कैसे फाइंड आउट करना है, वो आप एक्सप्लेन करेंगे तो दैट विल बी बेटर। ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू क्लियर दिस। ये ईबिटा वगैरह किसी किसी को पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, बट अभी सिंस यू नो एक्सपेंसेस, तो फिर आई कैन probably not tell you much in detail. I'll tell you all the main things which are really needed. Okay, just ठीक है, एग्जैक्टली। सो जो रेखा आप जिस एक्चुअली जिस चीज के लिए आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, एंड इवन आई वांटेड टू, आई जस्ट, मेरे को बस ये है कि यू नो क्लियर हो, अगर मैं बहुत जल्दी भाग रही हूँ, खिचड़ी बेसिकली कुछ अंदर घुस नहीं रहे दिमाग में, तब देयर इज नो पॉइंट। But since I think I was very slow and a bit detailed oriented in the first time, I'll try to make it a bit much more smoother right now. Okay, तो हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के KPIs होते हैं। KPIs आप लोग को बहुत याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, इंपॉर्टेंट चीज है मेरे लिए, बिकॉज KPIs आर समथिंग जो मेरे को पूरा देखने से बजे, बस इनको ही देख लो मेरा काम हो जाएगा। उसमें से बैलेंस शीट का KPI कुछ होता है, P&L का कुछ होता है, और कैश फ्लो का कुछ होता है। बैलेंस शीट में KPI होता है इन टर्म्स ऑफ रेशियो, डेट टू इक्विटी, ये सब लिख लीजिए आप। ओके, सो डेट टू इक्विटी, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल। P&L का होता है मार्जिन रेशियोज और रिटर्न रेशियोज। कैश फ्लो के होते हैं करंट लायबिलिटी कवरेज रेशियो, प्राइस टू कैश फ्लो रेशियो। अभी आप लोग मुझे फटाफट से बताइए कि किसको ये वर्ड से समझ में आ गए, किसके सिर के ऊपर से निकल गए। वेरी ऑनेस्टली, यू डोंट हैव टू फील शाय, मेरे को बस ये समझना है कि आप मुझे लोग, नहीं समझ आया, मुझे तो नहीं समझ आया। Even I didn't understand.
ओके मैम वो ये ऊपर वाला में एबिटा और वो सब था, वो भी समझ में नहीं आया, वो तो कुछ किए नहीं हम लोग। ओके so there are few terms which I'll have to explain before I can move on, right? Am I clear? I mean, I just want to understand because Rekha, I understand there might be some people who are up the ladder, some people who are going up the ladder. है ना? So I'll do one thing in order to keep you all in the same pace. एक काम करती हूँ, ईबिटा मैं फटाफट से जल्दी से समझा देती हूँ so that I can explain the ratio very easily. So ईबिटा का मतलब ये होता है रेवेन्यू आ गया आपके पास, एक्सपेंसेस हो गए, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में बहुत कुछ होता है, ओके even depreciation is an expense. If you all these are accounting things but you don't have to know all of them. ये सब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस निकलता है आपका ईबिटा. ये एक बस एक टेक्निकल जार्गन टाइप्स बोल सकते हो बट इसको बोलते हैं ईबिटा. Earnings before tax, इंटरेस्ट, टैक्स एंड depreciation, डेप्रिसिएशन एंड amortization. अमोर्टाइजेशन. परफेक्ट. अभी इसमें से बस टैक्स निकाल दो, क्या हो गया हमारा ईबिट. मतलब ये है ना बस फालतूगिरी की, हम लोग को फालतूगिरी नहीं, सॉरी, दिस आर जस्ट टर्म्स just to give a name to the line item, but it's as simple as another term for profit. इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट. इसको क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट, क्योंकि टैक्सेस निकल गए. क्लियर? EBITDA का फुल फॉर्म क्या था? Earnings before interest, tax, depreciation and amortization. Depreciation and amortization. देखो आप लोग ये जो टर्म्स ने डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, दीज आर ऑल अकाउंटिंग टर्म्स, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ. मतलब आपको इतना जरूरी भी नहीं जानना, बस आपको ये जानना है कि EBITDA का अलग दूसरा नाम है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से टैक्सेस हटा दो, ईबिट निकल जाता है. बस ये जान लो आप. ठीक है, आई हैव क्लियर्ड द बोर्ड. सो रेखा, इज दिस फाइन? Is this speed fine? I know you already know all of this, but I just wanted. नहीं पूरी मेरे ये मतलब नहीं है कि मेरे को मालूम है कि नहीं, मुझे भी इतना नहीं मालूम है. मतलब मुझे अकाउंट्स का बिल्कुल भी जीरो नॉलेज है, लेकिन मेरे को ये पता करना है कि एक बंदा जिसको अकाउंट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, क्या वो मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल तो 100. वही मतलब, तो इसीलिए हमको जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है हम उसमें जाएं और वो ज्यादा बेटर है, राइट? हमको प्रॉफिट लॉस मालूम हो गया, पीई बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमको मतलब वो आप बताना जरूरी है. ओके, जो आपको खुद को मालूम होगा कि विच क्या विच रेशियोज टर्म्स आर इम्पोर्टेंट. वेरी, हाँ, विच टर्म्स आर वेरी नेसेसरी फॉर द स्टॉक मार्केट एंड कौन से टर्म्स नहीं है जानना. I also agree with Rekha because या basically क्योंकि we want to. ये हम सब समझ के हम ज्यादा हाँ, कंफ्यूज ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी जीरो नॉलेज है कॉमर्स की. मैं आई एम नॉट फ्रॉम द कॉमर्स बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. everybody is not with the commerce background, but we are हाँ knowing little bit of share market, so we want to know हाँ, the terms which हम we are थोड़ा, using daily हाँ, and how to. जो रिलेटेड हैं स्टॉक मार्केट से, वो टर्म्स हम ज्यादा यूज करें तो बेटर होगा. एग्जैक्ट. ठीक है, डन, परफेक्ट. Because सो we are spending a lot of time in morning also in front of the TV and learning the many new terms also. But we ओके, want to know that terms, how to use the share market when we are watching the TV also.
There are हाँ, many other terms coming there. terms coming up. Okay, got it. So, Rekha and Hina, the reason, देखो ये जो मैं P&L ब्रेकडाउन की हूँ, बैलेंस शीट ब्रेकडाउन की हूँ, आपको अगर मैं डायरेक्टली पी रेशियो बता दूंगी ना, तो आप लोग को ऊपर ऊपर, आई मीन ऊपर ऊपर, मतलब एज इन यू विल अंडरस्टैंड इट, बट यू विल डेफिनेटली फॉरगेट इट, बिकॉज यू डोंट नो कि व्हाट एम आई रेफरिंग टू, ये P&L आया कहाँ से, क्या ये बैलेंस शीट से आया है या प्रॉफिट एंड लॉस से आया है। मतलब आपको बस पता है कि P&L 1 से ऊपर तो बाय करो, 1 से नीचे तो सेल करो। मतलब ये तो स्टुपिडिटी होगी। मतलब अगर एप्पल रेड है तो खरीदो, एप्पल ऑरेंज है तो बेचो। मतलब ऑरेंज एप्पल भी उतना ही टेस्टी हो सकता है जितना रेड है। इसलिए आपको रूट्स जानना थोड़ा जरूरी है बिफोर यू कैन एक्चुअली मेक अ गुड इन्वेस्टर और यू मेक अ गुड डिसीजन। ऐसा नहीं कि मैं नहीं बताना चाहती, बस वी अंडरस्टूड दैट। आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। नहीं, नहीं, मुझे ये लग रहा है कि हम लोग कंफ्यूज ज्यादा हो रहे हैं इन टर्म्स से। हमको वो क्लैरिटी हो रही है कि नहीं हो रही, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये सब जान के हमको कितना हेल्पफुल होगा हम एक स्टॉक को सिलेक्ट करने में। क्योंकि मेन रीजन होता है कि हाउ टू सिलेक्ट द कोई स्टॉक ना। इतने सारे स्टॉक्स हैं, इसमें से अगर आप जैसे बोल रहे हैं कि कैश फ्लो और सबका ये देखने लग जाएंगे, तब तो इट्स नॉट सो इजी। आइदर आप ये बता दो, हाँ जस्ट screener.com खोलो आपने, उसमें से एक फाइनेंशियल में जाओ, आप ग्राफ को देखो, प्रॉफिट लॉस कितना है, कितना कैश फ्लो है, वो मतलब आप प्रैक्टिकली आप दिखाएंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके, सो आई विल डू वन थिंग। मैं स्क्रीनर तो है ही इसका इस सेशन का हिस्सा है, इस ऑल 6 सेशंस कंबाइंड का हिस्सा है। तो 5 and 6 आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशंस। जो भी हम लोग थेरेटिकली अभी जो सीख रहे हैं ना, सारा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में 5 और 6 के लिए बचा के रखी हूँ, क्योंकि मुझे वहां पर थियोरेटिकल ज्ञान नहीं झाड़ना, ना मुझे ज्ञान झाड़ना है, ना मुझे वो करना है। तो मुझे जो भी कंफ्यूजन है ना, इसी 5 सेशन में मिटाएं। इसलिए आप जो बोल रहे हो ना स्क्रीनर वगैरह सब कुछ आएगा, बट आई जस्ट वांट टू क्लियर ऑल ऑफ दिस। सो देखो आप लोग, आई थिंक क्लैरिटी जो आप जो बोल रहे हो, मैं आपको रोड मैप बता देती हूँ कि वेयर आर वी हेडिंग टुवर्ड्स। मैं आपको ये सब चीज इसलिए बता रही हूँ, फंडामेंटल्स, because the next step will be screener, as you said. Then the next step will be money control. The next step will be dummy account, where we'll build our own portfolio. So ये सब चीज अभी नहीं होगा, 5 and 6 सेशन में होगा ये सारे चीज। पर जो भी थेरेटिकली ये सब चीज जो करने के लिए जो मसाला चाहिए, वो मैं आपको ये 4 सेशंस में खत्म करवाना चाहती हूँ। इसलिए मैं धीरे धीरे जा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करना चाहती हूँ उसको। क्लियर? अभी आप लोग को क्या रोड मैप समझ में आ गया, क्लैरिटी मिल गई है? ओके, परफेक्ट। सो बस आप लोग जो भी कर रहे हैं ना, वो आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक भी टर्म समझाने नहीं वाली हूँ। मैं बस डायरेक्टली एप्लीकेशन करने वाली हूँ, क्योंकि इफ आई एम मिक्सिंग थ्योरेटिकल एंड एप्लीकेशन, मेरा फोकस भटक जाता है। प्रैक्टिकल समझाने गई 1 घंटे का थ्योरी लेक्चर हो गया। सो टू कीप इट वेरी स्ट्रेट फोकस, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट डूइंग इन पार्ट्स। आई होप आई एम क्लियर। मतलब you are understanding where how the roadmap, how the flow is going. So, Yeah. Purvi, when we do when we go into the site screener and do things, so when we do the practical part, when we're talking about that, we still would have to go through uh, for doing the assessment to how to, or in which company to invest or whatever. We still have to need to go through these
statements, right? Financials or no? Yeah, of course you'll have to. Of course, yeah. So this is the groundwork for understanding that. वहां Exactly. पर जाकर समझ नहीं आएगा कि क्या है. Exactly. That This is. is the groundwork for doing that. मैं अभी groundwork इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब मैं उस टाइम वो चीज करूंगी तब मैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे जाऊंगी. मैं उस टाइम समझाने लग जाऊंगी. देखो 1 घंटा तो अभी खत्म हो गया, तो मैं थ्योरी प्रैक्टिकल भी अगर समझाऊंगी तब सब कुछ खिचड़ी की तरह हो जाएगा. Is Okay. That's the only reason I'm doing what like this. But if you guys are comfortable, I can pull out screener right now also. Which is better for you? So today you completed, and next session we'll think about a Okay, screen. perfect. So sorry, मैं कहाँ थी? हाँ, so बैलेंस शीट का डेट इक्विटी, करंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल, इबिट इबिटा आप लोग समझ गए है ना? इबिट इबिटा इज ग्रॉस प्रॉफिट, And EBIT is net profit. इबिट इज नेट प्रॉफिट. अभी ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्यों होता है और क्या होता है? देखो मैंने कहा रेवेन्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक पीएनएल में. ग्रॉस प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट और जो भी 1000 तरह के रेशियोज जो निकलते सारे रेवेन्यू के ऊपर निकलते हैं. रिटर्न ऑन समथिंग इज बेसिकली return on asset, return on profit, return on sales, return on blah 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 whatever. All those return things are always on revenue. आप लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए. All return items are always on revenue. So I'll write it neatly. तो ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है जो मुझे इबिटा मिला है, इबिटा डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इज माय ग्रॉस प्रॉफिट. ये कितना परसेंटेज है मेरे रेवेन्यू का, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो गया. क्लियर? एंड इस परसेंटेज को क्या बोलते हैं हम लोग? मार्जिन. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन. जैसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वैसे ही नेट प्रॉफिट मार्जिन भी होगा, है ना? नेट प्रॉफिट मार्जिन आप लोग बता दीजिए क्या है. EBIT to revenue is net profit margin. ठीक है, so these are margin ratios. अभी return ratios are basically return on asset, return on invested capital, return on sales, return on XYZ figures. Or return ratios are, for example, मेरे assets divided by revenue is my return. So return ratios आपको बताते क्या है, मैं आपको वो बताती हूँ. ratios क्यों हम, why are ratios so important, जो हम लोग अभी फिर 5 और 6 सेशन में भी करने वाले हैं. ratios are very very important क्योंकि हम लोग को एक परसेंटेज मिल जाता है कि कंपनी का एक फिगर दूसरे फिगर से कितना काम में कितना ज्यादा है. क्या उसका एसेट्स रेवेन्यू से ज्यादा है या क्या वो रेवेन्यू एसेट से ज्यादा है, क्या क्या चल क्या रहा है कंपनी में. अगर बस खाली नंबर्स देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा. अगर मेरे को 1:2 मिला है तो मतलब रेवेन्यू एसेट से ज्यादा है जो भी है. इसका रिटर्न ऑन एसेट्स का मतलब होता है कि मैंने जो एसेट, सपोज मैंने अगर पोहा बनाने के लिए वो कढ़ाई खरीदी है तो क्या मुझे वो कढ़ाई उतना रिटर्न दे रहा है, उतना क्या पोहा बना पा रही हूँ. अगर मैं छोटा कढ़ाई लूंगी तो मैं कम ही पोहा बना पाऊंगी, तो मुझे ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, मेरे को बड़ा कढ़ाई ही करना पड़ेगा.
रिटर्न कितना दे रहा है वो मुझे मिलते हैं रिटर्न रेशियो से। वैसे रिटर्न ऑन एसेट इज ऑन एसेट, एसेट कौन कितना रिटर्न दे रहा है, इन्वेस्टेड कैपिटल इज कितना कैपिटल मुझे कितना रिटर्न दे रहा है, इज बेसिकली इन्वेस्टेड कैपिटल। क्लियर? क्लियर या इट्स गोइंग ओवर योर मतलब इज इट haywire या is it too fast, too slow? Just give me an idea. Okay, I'll move. रिटर्न ऑन असेट समझ में आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कैसे समझ में आएगा? So in देखो कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल इज कैपिटल कितना लगा है कंपनी के अंदर। अभी कैपिटल दो तरीके की कैपिटल लगे कंपनी में, इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल। इक्विटी मतलब पब्लिक का पैसा और डेट मतलब बाहर का पैसा। तो इस पैसे में कितना मैं रिटर्न कर पा रही हूँ, कितना पैसा जनरेट कर पा रही हूँ। ओके, गॉट या इट। तो मेरा पीएनएल हो गया, पीएनएल के रेशियो हो गए। डेट टू इक्विटी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज अभी मैं बैलेंस शीट रेशियोज पे आ रही हूँ। हाँ, डेट टू इक्विटी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मेरा डेट, मैंने सपोज अगर मैंने बैंक से सपोज 1 लाख का लोन लिया है और मैंने पब्लिक से 5 लाख उठाए हुए हैं, तो क्या मेरा डेट ज्यादा है या मेरा इक्विटी ज्यादा है? इक्विटी ज्यादा, इक्विटी ज्यादा है। तो मतलब माय अगर डेट डेट इक्विटी टू इक्विटी इज लो, इट इज गुड, यूजुअली गुड फॉर अ कंपनी। बिकॉज मेरे को अगर पब्लिक से ज्यादा पैसा मिला है, मेरे को पब्लिक को तो पैसे रिटर्न करने नहीं है, मेरे को पब्लिक से पैसे मिला है, तो मेरे पास इतना लीवे है, इतना पैसा है कि मैं बैंक्स को तो एटलीस्ट जो मेरे एकदम जो मेरे नॉन नेगोशिएबल लाइबिलिटीज है उनको तो पैसे दे सकती हूँ। अगर मेरा रेशियो हो गया 5:1, मतलब 5 डेट है मेरे पास, 5 लोगों को पैसे देने पर मेरे पास एक जन का पैसा है, तो कंपनी के लिए बहुत गंदी पोजीशन हो जाएगी, है ना? अग्रीड? सो डेट टू इक्विटी शुड बी यूजुअली लो। करंट रेशियो का मतलब ये है एसेट्स, जितने एसेट्स है कंपनी के पास डिवाइडेड बाय द लाइबिलिटीज। शक्कर डिवाइडेड बाय द मिर्ची। अगर मेरे पास बहुत सारा शक्कर है तो तब भी खाना खराब हो जाएगा, बहुत कम शक्कर है तब भी खाना खराब हो जाएगा। मुझे ऐसे मेंटेन करना है कि शक्कर थोड़ा ज्यादा हो मिर्ची से। रीजन बीइंग क्योंकि शक्कर ही मेरी लड्डू की सेल्स बढ़ाएगी, मेरी मिर्ची नहीं बढ़ाने वाली। तो एसेट्स मेरे लायबिलिटी से थोड़े ज्यादा होने चाहिए। बहुत ज्यादा होंगे तो भी प्रॉब्लम है। क्यों है? उसका रीजन ये है क्योंकि एसेट्स हमेशा ऐसे नहीं होते कि जो पैसे बनाए। सपोज आपके पास बहुत सारा लड्डू इकट्ठा हो गया, आपने बहुत लड्डू बनाए पर वो लड्डू सड़ने लग गए, तो वो लड्डूस आपके तो एसेट्स थे पर वो बन जाते हैं लायबिलिटीज। आप अगर हद से ज्यादा लड्डू रखोगे आपके पास तो वो भी खराब है, पर लड्डू है आपकी इन्वेंट्री में तो वो अच्छा है अगर थोड़ा मिनिमम है। तो आपके लड्डू थोड़े आपके ज्यादा होने चाहिए, आपके एक्सपेंसेस या लाइबिलिटी से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। और जो रेशियो ये बताता है वो करंट रेशियो है। क्लियर? ठीक है, बस आप लोग ये दो रेशियोज याद रखिए। देखो मैं बहुत सारे रेशियोज है पर मैं सब चीज नहीं कवर करूंगी बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक अ हेल लॉट ऑफ टाइम। एंड एज Rekha ji also mentioned that there are only certain things which are more important than the others.
And coming to the most awaited moment of this class, which I also love, is something called valuation ratio. मैंने जानबूझ के इस शीट में नहीं लिखा क्योंकि मुझे खुद हाथ से लिखना था. It's called valuation ratios. वैल्यूएशन रेशियो का मतलब होता है, देखो अगर शेयर सपोज मैं टीसीएस खरीदी, टीसीएस का प्राइस फॉर एग्जांपल 3000 चल रहा है, ठीक है, 3000 रुपीज चल रहा है. टीसीएस का अर्निंग्स कितना है, सपोज जस्ट हाइपोथेटिकली मान लो 30,000 रुपीज है, ठीक है, 30,000 करोड़, ठीक है. देन इसका प्राइस टू अर्निंग्स, अगेंस्ट द अर्निंग्स में उसको $1 अर्निंग के लिए मैं कितना देना चाहती हूँ, उसका प्राइस में उसको कितना प्राइस देना चाहती हूँ उसने जितना अर्निंग्स किया है. आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग जो मैं आपको बोलना चाह रही हूँ? उसके अर्निंग्स का जितना अमाउंट है, मैं उसके वो कंपनी के अर्निंग्स के बदले में उसको कितना शेयर प्राइस देना चाहती हूँ, मतलब फॉर द कस्टमर ओनली ना, यू आर कितना सेइंग दैट कि वैल्यू दे रही हूँ मैं. करेक्ट. हाँ, मैं मतलब उस, जितना इन्वेस्ट किया उसकी कितनी वैल्यू में हम कस्टमर हाँ को वापस रिटर्न कर रहे हैं. कर नहीं, जितना इन्वेस्ट के नहीं. सपोज आपने लड्डू आज बेचा, आज आपने 1 लड्डू बेचा, कल 30 लड्डू बेचे, कल 50 लड्डू बेचे, तो आपकी कंपनी बड़ी होती गई होती गई होती गई होती गई होती गई, आपने अर्निंग्स बहुत ज्यादा करते गए करते गए करते गए, तो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई. तो अभी मैं आज आपकी कंपनी जब खरीदने जाऊंगी, जो मैं आपको बिगनिंग में देना चाहती थी, मैं आज आपको उसका 10 टाइम ज्यादा देने को तैयार हूँ. क्यों? क्योंकि आपने अर्निंग्स ज्यादा कर लिए, आपके पास पोटेंशियल ज्यादा है और अर्निंग्स करने की. तो कितना ज्यादा मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ वो अर्निंग्स को वो कंपनी के अर्निंग्स को That's लेने the के लिए. valuation. दैट इज द वैल्यूएशन. मैं उसको कितना वैल्यू करती हूँ. सपोज आपने बताया कि अगले 10 साल में मैं है ना आज 10 लड्डू बेच रही हूँ, परसों 20 बेचूंगी, फिर नेक्स्ट ईयर 30 बेचूंगी, पर अगले 5 साल में मैं है ना अराउंड 10,000 लड्डू बेचने को बेचने की कैपेसिटी के पावर है मेरे पास, इतना मार्केट शेयर है मेरे पास. तो मैं जितना आपको आज खरीदने को तैयार हूँ आपकी कंपनी को, उससे कहीं ज्यादा का वैल्यू मैं देना चाहूंगी जब आप उस, क्योंकि मुझे पता है आपके पास पोटेंशियल उधर तक पहुंचने की, मैं उतना वैल्यू करती हूँ आपको. सो फॉर दैट अर्निंग द अमाउंट ऑफ प्राइस आई एम रेडी टू पे इज बेसिकली पी रेशियो. अंडरस्टूड? P ratio is price divided by the earnings of the company. आप लोग लिख लीजिए, प्राइस डिवाइडेड बाय पी कैसे हम लोग इवेल्युएट करते हैं, मतलब कैसे डिसाइड करती है कोई किसी कंपनी का, ऐसे, मतलब मतलब कम अगेन, ऐसे पीई कौन डिसाइड करता है, प्राइस कौन कैसे डिसाइड डिसाइड करती करते है? हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द आपके उसके कितने शेयर्स अलोकेट हैं लिस्टेड हैं उस पर डिपेंड होता है, या उनकी कितनी अर्निंग्स है रियल में उस पर डिपेंड होता है. अच्छा, सो पी रेशियो का वैल्यूएशन कौन करता है, वैसे आप पूछ रहे हो ना? ओके, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन. सो यूजुअली हर एक इंडस्ट्री का एक एक पैटर्न होता है. फॉर एग्जाम्पल चाय, फॉर एग्जाम्पल जो फेस्टिवल इंडस्ट्री है वो दिवाली के वक्त बहुत बहुत उठेगी. जो मिठाई की इंडस्ट्री है, दिवाली के वक्त उसकी सेल्स बढ़ेगी. किसी और इंडस्ट्री की, फॉर एग्जांपल एविएशन इंडस्ट्री की, वेकेशन टाइम पे बहुत बढ़ेगी. अलग अलग सब इंडस्ट्री के अपने वेज ऑफ मेजरिंग है ना? सो अभी आपने पूछा कि वैल्यूएशन कैसे होगा, कि यार मैं आज इस कंपनी को
ज्यादा शेयर प्राइस देने के तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो अगले साल आने वाला है आफ्टर द सिलेक्शंस, आई फील लाइक द डिफेंस सेक्टर में बहुत पोटेंशियल है टू डू XYZ। उसके बेसिस में द समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग। क्या आप लोग ने सुना है इसका टर्म? समथिंग कॉल्ड फाइनेंशियल मॉडलिंग। सो रेखा जी, दे ये जब करेंगे ना, तब हम लोग प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो बहुत एक्यूरेटली डिसाइड कर पाएंगे। देखो, ये फाइनेंशियल मॉडलिंग इज होल बॉल गेम ऑल टुगेदर, जो मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि मैं इस सेशंस में तो कवर करने नहीं वाली, बिकॉज दिस इज एन कोर इन्वेस्टमेंट एंड अ फाइनेंस कॉन्सेप्ट। इसके लिए आपको बहुत फोरकास्टिंग और एक्सेल नॉलेज ये वो जरूरत होगा। तो पी रेशियो का जो डिराइवेशन है, जो आप पूछ रहे हो रेखा जी कि डिराइव कैसे होता है, वो होता है इसके वजह से। दिस इज जस्ट वन ऑफ थिंग, द लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स, बट दिस इज वन ऑफ द मेन थिंग्स। आई होप आई हम आंसर्ड योर कैसे क्वेश्चन। डिसाइड करेंगे किसी कंपनी का अगर पीई 14 है तो वो एक्सपेंसिव है, और किसी का 10 है तो वो ओके, चीप है? परफेक्ट। तो ओके, दैट इज द क्वेश्चन। सो यस। नाउ एज आई वाज सेइंग, एविएशन इंडस्ट्री में स्पाइस जेट भी है, इंडिगो भी है, जेट एयरवेज भी है, बहुत सारी कंपनीज है। अभी एविएशन इंडस्ट्री का फाइनेंशियल मॉडलिंग के या जो भी XYZ रीजन से एविएशन का पी रेशियो मिला है 10। एविएशन का पी रेशियो मिला है, मतलब एविएशन इंडस्ट्री में 10 गुना ज्यादा पे करने को तैयार हूँ उसके अर्निंग से, क्योंकि मुझे एविएशन इंडस्ट्री में पोटेंशियल दिख रहा है। पर अब स्पाइस जेट बोलता है नहीं, इंडस्ट्री 10 गुना है पर मैं तो 20 गुना पी लूंगा। ये बोलते नहीं, मेरे को 50 पी मुझे चाहिए, पर ये बोलता है नहीं, मैं 5 पी में ठीक हूँ। तो रेखा जी, जो आप बोल रहे हो ना कि क्या मैं कैसे डिसाइड करूँ कि 50 बेटर है, 20 बेटर है या 5 बेटर है, वो इंडस्ट्री पी से आप कंपेयर करना पड़ेगा आपको। देखो, ये 20 10 से थोड़ा ऊपर है, 50 बहुत ऊपर है, 5 नीचे है। सो दिस इंडिगो राइट नाउ इज वेरी ओवर वैल्यूड। मतलब इट इज, Indigo is demanding a lot more share price than the earnings it is getting in the company. Understood? और ये 10 जो ये ऊपर है वो कौन कौन फिक्स करता है 10? ये पूरा ये जो होता है, ये प्रॉपर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, जो एक्चुअली उस इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं ना, उन लोग बहुत थरो रिसर्च करके, फोरकास्टिंग करके, इंडस्ट्री को स्टडी करके तब ये जाके निकलता है। सो दिस और ये है वो कहाँ पब्लिश होता है? वो भी एनुअल रिपोर्ट में होता है? जो 10 है वो भी एनुअल रिपोर्ट में होता है कंपनी के? सो एनुअल रिपोर्ट में यूज आजकल करने लगा है, पहले तो नहीं होता था। द sites like money control, screener, all of this have P ratio inbuilt in them. Inbuilt as in, this is a very important. P ratio is not something जो कंपनी को देता है। कंपनी का शेयर प्राइस पता है, सेल्स पता है, अभी हम लोग को कैलकुलेट करना है। P ratio is not something which they provide. We calculate ourselves because we want to value the company. It's इसलिए this is a secondary derivation of the first hand information. पूर्वी एक बार आप गूगल करके आप सबको बताओगे, जैसे कोई शेयर आप गूगल करो, जैसे HDFC बैंक आप गूगल करो, Right. So and then you can show it to everyone where is market cap has been written and where PE ratio will be written and where the dividend yield will be written, तो फिर शायद ज्यादा समझ में आएगा। okay, I will do that. I will do that. आप ऐसे लिखोगे ना कि एस कोई भी वो, तो अब ज्यादा मेरे ख्याल में सबको क्लियर हो पाएगा। हाँ हाँ हाँ, okay, done, perfect. So जैसे इसके नीचे ही देखो, स्क्रॉल करो एंड यहाँ पे सबको लिखा है, जैसे ओपन के exactly. हाँ, तो मार्केट कैप कितना है,
वो पता पड़ गया। अब पीई रेशियो जैसे मेरा यही है कि अभी एचडीएफसी का पीई रेशियो बहुत कम हो गया, तो अब मैं इससे ये जज करूं कि मतलब एचडीएफसी की इतनी वैल्यू नहीं रही है, मतलब पीपल डोंट वांट टू बाय द एचडीएफसी नाउ, इन तो दे आर मोर नाउ दे प्रेफर एक्सिस बैंक और द आईसीआईसी बैंक। मतलब जैसे पीई रेशियो नीचे जा रहा है तो यानी उसकी वैल्यूएशन कम हो गई, तो हम कैसे जज कर पाए कि नाउ ये स्टॉक अच्छा है फ्यूचर के लिए कि नहीं है, मेरा ये पूछने का मतलब ओके था। ओके, सो पहले तो हम लोग इसका इंडस्ट्री पी देख लेते हैं। इंडस्ट्री पी क्या बोलता है हम लोग को? सेक्टर पी बेसिकली, सेक्टर पी, इंडस्ट्री पी। सो सेक्टर पी 19 है और एचडीएफसी का पी था 16, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना, 16 था, यस। सो रेखा जी, एचडीएफसी was 16, इंडस्ट्री पी इज 19, इट इज हाँ, अ तो इसका बहुत कम हो गया ना अभी, अगर आप बहुत, देखोगे तो। हाँ इट इज अ वेरी गुड वैल्यूएशन। हाँ, तो अभी मतलब वैल्यूएशन अच्छी है, तो मतलब मैं लेना चाहिए या मैं नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए? इट्स मतलब ऐसे कह सकते हैं यू आर गेटिंग इन डिस्काउंट, तो या करेक्ट, लेकिन यू गेटिंग ऑन डिस्काउंट। तो देखो, अगर मैं बस पी रेशियो देख रही हूँ तो मैं अभी बोलूंगी कि हाँ आप ले सकते हो इसको, ओके। एचडीएफसी बैंक को बिल्कुल ले सकते हो, बट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पी। मैंने पी भी नहीं देखा है, मैंने कुछ और देखा नहीं है, हम्म। ठीक है। So PE always has to be compared with the industry PE, always. और इंडस्ट्री पी कहाँ लिखा है? अच्छा, ये सेक्टर पीई लिखा है, वो सेक्टर इंडस्ट्री पी है। Correct. ओके। Sector P is industry PE. 19.48। ओके। 19.48 as against 16. तो मतलब इंडस्ट्री 19 देने को तैयार हो, पर एचडीएफसी मुझे 16 ऑफर मतलब कर रहा है, तो हाँ, मेरे को अगर थोड़ा वैल्यूएशन उसका मतलब कम करेक्ट हुई है तो हमको लेना चाहिए। ले सकते, एग्जैक्टली। ओके। लेकिन ये डिपेंड टू कंपनी ना, क्योंकि एचडीएफसी की कंपनी मतलब बहुत अच्छी है, इसलिए वो कम वैल्यू पे मिल रही है तो भी हमें लेना चाहिए। अगर कोई बहुत ही चीप है तो उसके तो ऑब्वियसली बहुत ही कम पीई होगा, तो उसको हम मार्केट कैप पे हम लोग जज करेंगे या कैसे जज करेंगे? तो आप लोग को क्या समझ में आया रेखा जी क्या क्वेश्चंस पूछ रही है सब लोग को? हाँ, यानी शी इज ट्राइंग टू टेल कि HDFC is a well-known like company. So if the P is less, so we should be interested. But if there is no well-known company, so we should go for some other factors which may be deciding, परफेक्ट, right? तो आप लोग को समझ में आ गया। सो रेखा जी, आप जो बोल रहे हो वो एब्सोल्युटली राइट है कि देखो एचडीएफसी तो वेल नोन कंपनी है, कोई करेगा भी नहीं इतना एनालिसिस तो भी कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बट व्हाट अबाउट स्मॉल कैप कंपनीज एंड ऑल दोस स्मॉलर कंपनीज? सो उनका क्या है, पी रेशियो से अकेले से नहीं पता चल सकता, आपको उनके फाइनेंशियल्स देखने पड़ेंगे। एंड स्मॉल कैप कंपनीज में फाइनेंशियल से ज्यादा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट इसमें। क्वालिटेटिव ज्यादा इम्पोर्टेंट है? हाँ हाँ, फॉर ओके, क्योंकि स्मॉल, क्योंकि जैसे हम अभी अभी इस चार्ट को भी देखें तो इसमें मोर हमको जैसे बुक वैल्यू पूछते हैं, तो बुक वैल्यू वी आर नॉट वेरी मच अवेयर व्हाट इज द बुक वैल्यू, कितनी है, पीई कितना है, पीबी कितना है, ईपीएस कितना है, वो सब हमको इतना नहीं पता होता है। तो ये आप कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव आर मोर इम्पोर्टेंट रेदर देन दैट यू हैव अ नॉलेज ऑफ क्वांटिटेटिव। फॉर स्मॉल कैप कंपनीज, जो ओके। कंपनीज इतनी वेल नोन नहीं है ना, जैसे हम्म। आप मेंशन कर रहे हैं, उनके लिए रेशियोज इम्पोर्टेंट तो है ही, बट बिकॉज वी आर नॉट एज फेमिलियर की कंपनी फंडामेंटली क्या है, तो उन कंपनीज के लिए क्वालिटेटिव बिकम्स एन इशू। बड़ी कंपनीज के लिए आप ये सब भी देख के बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं छोटी कंपनीज की बात कर रही हूँ जो ओके। बहुत अननोन है, जो बहुत न्यू है इस एरिया में। क्या उनमें दम है एक्चुअली मार्केट्स में लड़ने का? उनके शायद अर्निंग्स अभी तो बहुत अच्छे हैं, रेवेन्यू बहुत आ रहा है, पर उनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा, तो आखिर में वो लॉस ही कर रहे हैं, ये भी हो सकता है।
तो वो लॉस शायद अभी इसलिए करे क्योंकि अभी नए नए आया है, तो अभी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करे, ये करे वो करे, इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं कर सकते। तो ये अभी वापस से हमारा पर्सपेक्टिव बदल गया, और ये सब हम लोग को डिटेल्स फाइनेंशियल नहीं दे सकती, ये हम लोग को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ही बता सकती है कि उनके आगे के प्लान्स क्या है। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? हाँ हाँ, समझ में आ गया। राइट। बट या दिस इज ओनली फॉर स्मॉल कंपनीज, आपको ये हर कंपनी करने के साथ करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है एंड इट्स नॉट एज मच रेलेवेंट फॉर एवरी कंपनी। सो ओनली स्मॉल कैप कंपनीज यूजुअली जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं ना लोग, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, आई थिंक अभी बहुत वक्त हो गया है, पर आप लोग बता देना जब भी यू गाइस वांट मी टू स्टॉप दिस थिंग, दिस सेशन। अब अप्रोक्सीमेटली सब कुछ हो गया है, जस्ट हैव वन मोर रेशियो जो पीबी रेशियो है, जो आप रेखा जी ने भी देखा था, वो कवर कर रही हूँ। उससे फिर आके फिर हम लोग बंद कर सकते हैं। सो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक्चुअली जो टैलेंट होता है ना एक इन्वेस्टर का, वो बड़े से मैदान में जेम्स को ढूंढना होता है, छोटी छोटी कंपनीज को ढूंढना होता है, जो बड़े जाके जो बाद में जाके बड़े हो जाए। क्योंकि इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि जो कंपनीज ऑलरेडी बड़ी हो और बड़े हो तो थोड़ा मतलब आपको पैसा कितना ही मिलेगा। जो कंपनी एक्सप्लोर करेगी तो आपको एक्सप्लोरिंग प्रोसेस में घुसना है, इसलिए आप वो सब करते हैं। और इसलिए इन्वेस्टर्स एनुअल रिपोर्ट इतना पढ़ते हैं, क्योंकि उनको वो छोटी कंपनीज को आइडेंटिफाई करनी है जिनमें पोटेंशियल है एक्सप्लोर करने का, राइट। सो पीबी रेशियो का, पीबी इज ऑल्सो नदर वैल्यूएशन रेशियो। इसका मतलब ये है, देखो आप लोग ने अभी अभी सबको आप पता चल गया एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। अभी एसेट्स में जो बुक्स के अंदर है, सपोज एसेट्स 100 करोड़ है मेरे पास, पर मैंने अपनी जो मेरा शेयर प्राइस है वो 500 लिस्टिंग है 500 रुपए, ठीक है। तो मेरा प्राइस कितना है अगेंस्ट द बुक वैल्यू, अगेंस्ट माय एसेट्स ऑफ द कंपनी, मैं कितना ज्यादा देने को तैयार हूं फॉर दैट नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। वो जो फर्स्ट रेशियो था वो अगेंस्ट द अर्निंग्स, दिस इज अगेंस्ट द एसेट्स, difference is only in the denominator, that was against the earnings, this is against the assets. So for companies like machinery, companies which are into machinery or into manufacturing, all of this, उसमें पीवी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनमें बुक उनके पास एसेट्स बहुत ज्यादा होते हैं, एसेट हैवी कंपनीज, मशीन्स ज्यादा होगी, लैंड ज्यादा होगा। डन, समझ में आ गया? ओके, सो अभी के लिए मैं तो इधर तक ही रोकने वाली हूँ सेशन को। जो मुझे कवर करना था उतना मैंने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से we are going to start something very, we are going to apply everything practically, जो भी हम लोग ने अभी तक सीखा है। इट कैन बी, आई विल गो स्टेप बाय स्टेप, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, बट आई जस्ट हैव फ्यू रिक्वेस्ट जो मैं आपको ग्रुप में करने को बोलूंगी। मे बी यू नो हैव टू ओपन सम डमी अकाउंट्स, यू हैव टू ओपन समथिंग। आप लोग बस वो डिसिप्लिन और थोड़ा कोऑर्डिनेट करना कि आप लोग वो करते जो मैं आपको बोलते जा रहे ग्रुप में। ग्रुप में आपको सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। सो यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द पेपर ट्रेडिंग ना, कोई भी पेपर ट्रेडिंग अकाउंट किसी के पास में कोई भी खोल सकता है ना वो तो। हाँ हाँ, डमी अकाउंट, हम लोग डमी अकाउंट खोलेंगे ना। हाँ तो वो ओके, आप तब नेक्स्ट क्लास में बताएंगे ऐसे। नहीं नेक्स्ट क्लास में नहीं, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बताऊंगी। अभी मैं बताने जाऊंगी तो
इट्स ऑलरेडी 10:30 Right. ना, तो और लेट हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ. दैट्स द ओनली रीजन. नहीं तो फिर मैं आपको पूरा स्टेप वाइज ग्रुप में आपको दे दूंगी डिटेल्स. अभी थोड़ी Yeah. देर में ही दे दूंगी. Right. ठीक है. सो कैसे लगा आप लोग को? मैं बस आई कीप इट क्विक. अभी 10:21 हो रही है. आई कीप इट जस्ट 5 minutes टू अंडरस्टैंड हाउ वाज इट फॉर यू टुडे and what did you guys learn and what are you expecting over the next few classes? Was a heavily loaded class today. Like so Yeah, many new things. much information. But I think when we will be using them or when we'll see them, वो कुछ ज़्यादा digest होगा. हाँ, थोड़ा ज्यादा डाइजेस्ट होगा. ओके, आई कंप्लीटली अग्री. मेरे साथ भी ये मतलब द यूजुअली जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका या फिर जैसे होता है ना, तो यूजुअली पहले थियोरेटिकल सेशंस होता है. और ऐसा नहीं कि मेरे को उन्हीं के पाथवे में जाना है, पर मेरे को अभी रीजन समझ में आए उन लोग क्यों करते हैं ऐसे. जब भी आप कुछ कोडिंग भी सीखते हैं ना, तो पहले तो आप जो टर्म्स है वो सीखेंगे कि वर्कशीट, वर्कबुक, ऑल ऑफ दिस. फिर कंटाल आता है कि यार क्या करूंगी मैं ये सब सीख के, वर्कबुक, वर्कशीट, ये सब सीख के मैं क्या करूंगी. पर जब आप अप्लाई करते हैं ना, तब जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना, वो लोग यही टर्म्स यूज करते हैं. वर्कशीट और वर्कबुक ही यूज करेंगे. वो ये नहीं करेंगे कि भाई वो वाला डब्बा डब्बा वाला खोलो ना. लोग बोलेंगे एक्सेल ही खोलो. तो वो चीज जानने के लिए हम लोग को वो थियोरेटिकल नॉलेज जरूरी है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड. जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम जा रही है, तब हम लोग एकदम स्मूथली अप्लाई करें. ऐसे अटक अटक के काम करेंगे तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे. Right? So definitely things will get clear over the next few sessions, and I will announce in the group. So one session, probably the last one, will be a live session. It will be a live session. Okay? जहाँ मैं आप लोग को physically, I want to meet you all physically, and you guys also have to interact with one another. And one session, and probably during the live session, it's not confirmed as of now, but there will be more. I will be calling in more people in during the session. जो आप लोग actually सीख रहे हो, you will actually be demonstrating it. So it'll be like a practical demonstration of what, like it's a communication presentation kind of thing. So you mean to say live class means the physical class, yeah, live class as a live market class? No, physical. Okay. It will be physical. मार्केट्स के साथ लाइव का इशू मैं नहीं कर पाऊंगी अभी के लिए, बिकॉज वी हैवंट रीच दैट स्टेज राइट नाउ. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो जिससे अभी आप, जैसे रेखा जी ने बोला फंडामेंटल. अभी फंडामेंटल इज जस्ट वन एस्पेक्ट, दिस टेक्निकल एज वेल, which is also very important. So when both of them is merged, then only can I enter the markets and take proper decisions in terms of if you want to be a trading kind of thing. As definitely you can be a long-term investor by only knowing the fundamentals. That's not an issue. When if you, as long as you are a long-term investor, knowing fundamentals is definitely not an issue. Okay, so any more questions, good feedback, anything, any suggestions, any requests or anything, how you're finding it? Was it too fast? Was it too slow? How was this session for you? I just want to get an overall idea. Yeah, I Not think too fast, yeah. Sorry? but information loaded session. Yeah, So it is. for It is today's good. session, I will definitely have to go back to the recording and listen to it again, especially the last part of it, last bit of it, last half an hour. Right.
So तो yeah, I appreciate कि जब प्रैक्टिकल करने लगेंगे तब वो जब टर्म्स सामने फ्लैश होंगी और समझ नहीं आएंगी उसके करते we understand these terms a bit little now. better. And yeah, so पूर्वी ये वन नोट भी आप शेयर कर देना। हाँ हाँ फॉर श्योर, ये मैं शेयर कर लूंगी सो दैट आप लोग का भी आई थिंक मेरे को ये बिगनिंग से कर लेना चाहिए था, बट आई वाज ऑन मैं मेरे को लिखने की आदत है ना इतना ज्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन प्रोबेबली व्हेन आई राइट इट इट्स लाइक मे बी क्लासरूम में बैठी हूँ मैं बता दी, बट हैविंग थिंग्स लिस्टेड डाउन makes it definitely much more authoritative and communicative in terms of the structure. That's what Lavanya ma'am had also suggested last time. तो इसलिए मेरे को ये वन नोट तो मैं आज का तो डेफिनेटली शेयर कर लूँ कि जो पिछले के सेशंस है ना उसके मैं वन नोट अभी प्रिपेयर कर रही हूँ, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी, नो वरीज इन दैट. एनीथिंग Thank you. एल्स? No, thank you for that. थैंक यू पूर्वी। या या चलो, have a great day. And just one more thing. So आप लोग को मैंने शायद बिगनिंग में बताया था, just 3 more minutes guys, उसके बाद I won't take much of your time. बिगनिंग में जब आप लोग को मैं कॉल की थी for enrolling you guys in the session, मैंने आप लोग को एक चीज बोली थी कि this is not just going to stick till 6 sessions, it's going to be much beyond that, go beyond that, right? आप लोग को याद है? I had something like I'll be going beyond the 6 sessions where we are going to lively keep tracking a portfolio on a weekly basis. मैंने ऐसा कुछ बोला था आपके लिए. Yeah, you said that 5 shares लेंगे, then you have Correct. to follow. Correct. तो उसके लिए अभी फिलहाल मैं आपको और डिटेल्स अगले लाइव सेशन के वक्त बताऊंगी, बट अभी के लिए मैं ये बता सकती हूँ कि ये जो 6 सेशंस होने के बाद भी हम लोग जो प्रोसेस है ऑफ मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ कीपिंग इट लाइव, वो जरूर वो चालू रहेगा हमारा प्रोसेस. सो इट्स नॉट लाइक ये 6 सेशंस खत्म हो गए तो आपका लर्निंग प्रोसेस खत्म हो गया. आप लोग तभी भी पूछ सकते हैं. You're going to be part of the After that only we will apply and use it. exactly. So जो फिजिकल सेशन उसमें मैं और डिटेल से बताऊंगी कि how we're going to do it and what's the plan of action for the next few months. But right now, for month of May, I'll have another few sets of different people coming to basically a new set of तो basically जो हम लोग पोर्टफोलियो ट्रैक करेंगे ना उसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व करने की कोशिश करिए, so that there's a team which is formed. For example, हीना, पायल, रेखा एक सपोज एविएशन इंडस्ट्री का एनालाइज कर रहे, then Lavanya, Sonali and Rekha and maybe Payal is doing, Nihali is doing one industry. So एक person के ऊपर ज्यादा burden नहीं आएगा, है ना? मतलब everyone will have only certain bit. That's why more ladies जब involve हो जाएंगी तब हमारे पास ज्यादा information और ज्यादा डेटा, क्रिस्प डेटा होगा. फिर मे बी लावण्या जी पीएनएल देखेंगे तो बस पीएनएल ही देखेंगी, निहाली जी ओनली बैलेंस शीट देखेंगी, सोनाली जी ओनली कैश फ्लो देखेगी, और फिर तीनों को इकट्ठा कंपाइल करके हम लोग एक अच्छा रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, अच्छा एक एनालिसिस कर सकते हैं. सो दैट्स व्हाई इन द मंथ ऑफ मे I am bringing the second batch of ladies. जैसे आप अभी अप्रैल के थे वैसे मई में सेकेंड बैच ऑफ लेडीज आएंगी, और जब हम लोग के पास एटलीस्ट ग्रुप हो जाएगा about 10-15 people or 16 people, then we can divide stuff evenly ताकि किसी एक के ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं और हम लोग का काम भी हो जाए in terms of
जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं, बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, वो अचीव हो. So right now, what I want a help from you guys is that try to get in few ladies from your group who are interested or genuinely interested about this. So the process of doing something together towards the towards the end of May is going to be more fruitful. Is what is a little idea I can give you. But rest तो मैं आपको बता दूंगी, in the 6th session वगैरह. But that's the idea. This is like the outline of where we are heading towards. If you guys get the picture. All good? So firstly, thank you so much. आप लोग इतना देर तक रहे मेरे साथ, and I will see you in the next session. Until then, have a great day, good night, and rest. आराम से rest. Thank you for giving your time. चलो, bye bye. Lavan is already very tired. I'm No, I'm really not tired. I have some allergy in my eyes. It's irritating me a lot. I'm listening, but I have to close my eyes. It's really irritating. हाँ, अच्छा, okay. No, please, आप, whenever you can please rest and just listen to the audio, right? I mean, I can definitely do that. But take care, guys. Stay active in the group, and right now let the new flow of information in terms of news keep coming in. Let the energy keep going on, and I'll see you in the next class. Thank you, Purvi. Thank you so Bye-bye. much. Thank you. Bye. Good night.